بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پران کنو مدک، قرآن پران کنو گئی سور، قرآن پران زند کت رودک، قرآن پران دود منصور۔ ناظرین محترم، سوال جواب کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج ہم نے مناسب سمجھا ایک ایسے انسان سے آپ کو ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے حال ہی میں حفظ کیا ہے، قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے رکھا ہے۔ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے جب ایسے نوجوان، ہمارے قوم کے نوجوان جو ہے قرآن پاک سے اتنا محبت کر کے اس کو محفوظ اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ یہ دراصل سب سے پہلے ان کے والدین کو یہ مبارک، اس کے بعد ان کے اساتذہ کو یہ مبارک، اس کے بعد انہیں مبارک اور ہم سب کو مبارک ہے۔ یہ ہے حافظ عنایت صاحب، آج ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، ہماری طرف سے، ہماری بلال میاں آفیشل کی ٹیم کی طرف سے آپ کو ہم تہہ دل سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کا بڑا شکریہ جی حضرت۔ اچھا حافظ صاحب، آپ بتائیں، آپ نے حفظ کیا ہے، کس مدرسے سے آپ نے یہ حفظ کیا ہے، اور اس میں آپ بتائیں کہ کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے تو رہی بات کہ میں نے کس مدرسے میں حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری کشمیر میں ایک نامور مدرسہ ہے، ایک مشہور مدرسہ ہے جنہیں آپ بھی بخوبی جانتے ہوں گے اور لوگ بھی جانتے ہیں اس مدرسے کو، جو دارالعلوم سوپور کے نام سے مشہور ہے۔ سوپور کے اندر واقع ہے اس کا، جس کے محتمیم حضرت مولانا بشیر الدین قاسمی دامت برکاتہ عالیہ ہے، اور وہاں کے مشہور اور معروف استاد حضرت مفتی مظفر حسین قاسمی دامت برکاتہ عالیہ ہے۔ تو اس مدرسے سے میں نے حفظ کیا ہے۔ تو رہی بات آپ کے دوسرے سوال کا جواب، کیونکہ آپ نے پوچھا کہ اس میں کتنی مشکلات اٹھانی پڑتی ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے جتنی محنت اس قرآن پاک کے حفظ کرنے کے اندر لگتی ہے، دنیا کے کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی مشن یا مقصد کے اندر، یا کسی بھی کتاب کے اندر شاید ہی اتنی محنت لگتی ہو۔ کیونکہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے انسان، چونکہ میں اپنی بات کہوں آپ کو، میں جب پڑھنے کے لیے گیا تھا مدرسے میں 2016 میں گیا تھا، چھوٹی عید الفطر کے بعد ہی میں گیا تھا، شوال میں، کیونکہ میری ایج جو تھی اچھی خاصی تھی اس وقت، 10th کر چکا تھا، میں 10th کا ایگزام دیا تھا میں نے، اس کے بعد گیا تھا میں۔ تو اس کے بعد ہمارا سلسلہ وہاں پہ رہتا ہے، پڑھائی کا جو شروع ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ناظرہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ناظرہ میں نے تھوڑا سا کیا تھا۔ اس کے بعد ناظرے کے بعد میں نے حفظ میں داخلہ لیا۔ اس وقت بھی میری ایج اچھی خاصی تھی، لگ بھگ 17 کے آس پاس تھا میں۔ تو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بڑا لڑکا ہوتا ہے یا 16 سال کا 18 سال کا لڑکا ہوتا ہے، اس بیچارے کو زیادہ مشکلات اس لیے پڑتی ہیں کیونکہ یہ جب بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کا ذہن بھی بڑھتا جا رہا ہے، بنسبت کہ 10 سال کا بچہ ہو، 8 سال کا بچہ ہو، وہ اس کے مقابلے میں جو ہے حفظ جلدی کر لیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان رہا، اللہ کا فضل رہا، اور اساتذہ کی محنت رہی ہمارے اوپر، ماں باپ کی دعا رہی ہمارے اوپر۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں جو میرے ساتھ رہی، اساتذہ کی محنت رہی، بس اس کی بدولت میں اس کام کو انجام دے پایا ہوں، ورنہ شاید میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اور اللہ کو منظور بھی یہی تھا کہ اللہ مجھے بھی اس کے لیے منتخب کرے، اللہ مجھے بھی اس نعمت سے نوازے، اللہ کا احسان ہے۔ محنتوں کا تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ وہاں پہ کیسی محنت ہوتی ہے ہماری، کیونکہ صبح فجر اذان سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، قریب 1 گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے اذان سے فجر کی۔ تو تب سے ہماری پڑھائی شروع ہوتی ہے، حالانکہ دن میں کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے، مثلا میں آپ کو بتاؤں عصر کے بعد ہمارا وقت جو ہے فارغ رہتا ہے کھیلنے کودنے کے لیے،
दिन में दोपहर के वक्त करीब 1 घंटा मिलता है हमें आराम के लिए, बाकी अवकात हमारे पूरे जो है इसी कलाम पाक के लिए गुजरते हैं, इसी की मेहनत के लिए गुजरते हैं। हम इसी के साथ लगे रहते हैं, याद करते, सबक याद करना पड़ता है, नया पिछला याद करना पड़ता है, आमुख्ता हमारा याद करना पड़ता है। तो मशक्क़तें तो बहुत आती है इसमें, मुश्किलात तो बहुत आती है इसमें। अच्छा हाफिज़ साहब, कब आपको इस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ कि मुझे हाफिज़ बनना है, कुरान पाक को हिफ्ज़ करके अपने सीने में महफूज करके रखना है? ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और कब हुआ? देखिए मैं बताऊं आपको, शौक़ की बात तो ये है कि हर किसी बंदे के अंदर कुछ ना कुछ जो उनके ख्वाब होते हैं वो हर एक के पास होते हैं। किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, और इसी तरह किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। मैं आपको बताऊं, 2010 में मैंने एतिकाफ़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक तबलीग के साथी हमारे साथ थे एतिकाफ़ में, तो उन्होंने हमसे बात की, हमारी तश्कील की। तो जो ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग के साथ थोड़ा सा जुड़ा, इस मेहनत के साथ थोड़ा सा लगा, इनके साथ थोड़ा सा मेरा उठना बैठना हो गया, तो ईमान की कैफियत जो तो बढ़ती रहती है। तो फिर इंसान को ये जज्बात आते हैं कि मैं भी आलिम बनूं, मैं भी कुरान पाक का हाफिज़ बनूं, मैं भी दीन का दाई बनूं। तो उस वक्त से मेरे दिल के अंदर ये शौक़ हुआ। होते बहुत से ख्वाब ऐसे, कुछ तो पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो गया। अल्लाह ने मुझ पर एहसान कर दिया कि अल्लाह ने मुझे इस ख्वाब के मकसद में जो है कामयाब कर दिया। तो तब से मेरा शौक़ था कि मैं हाफ़िज़ कुरान बन जाऊँ। तो अल्लाह ने मेरी दुआ शायद कबूल कर ली, तो अल्लाह ने मुझे इस कुरान पाक की दौलत से नवाजा है। बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो दूर हो चुके हैं इस कुरान पाक से, आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? देखिए मैं बताऊं, आज चूँकि मॉडर्न ज़माना चल रहा है, आजकल का ज़माना ऐसा चल रहा है कि अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है इस ज़माने के अंदर। आज तो दीन जो है न तो हमारे घरों के अंदर रहा है, न हमारी ज़िंदगियों के अंदर रहा है। अब ना हमारे बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, ना हमारे बड़े कर रहे हैं। आज का दौर तो ऐसा है, आज तो हमने दीन को भी छोड़ दिया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी छोड़ दिया है। क्योंकि चाहिए कि दीन जो है ऐसी चीज़ है, कुरान जो है हमारे लिए ऐसी नियामत है अल्लाह की, जिसके बगैर हमें छुटकारा नहीं है जी। हम दुनिया के अंदर कहीं भी जाए, किसी भी जगह पे जाए, कोई भी काम कर ले, कोई भी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन अगर हमारे अंदर कुरान नहीं है, अगर हमारे अंदर दीन नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी जो है बेकार है। हम दुनिया के अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाए नाकाम है। अगर जो हमने दुनिया के किसी भी ओहदे तक पहुँचे हो, हमारा आखिरत भी बर्बाद है, हमारी दुनिया भी बर्बाद है। बज़ाहिर लगेगा हमें कि हम शायद दुनिया में जो है सक्सेस हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये हमारी आंखों का धोखा है। दीन जो है, कुरान जो है, हमारे लिए एक वाहिद ज़रिया है जो हमें दुनिया में भी कामयाब करता है, आखिरत के अंदर भी कामयाब करता है। आजकल हमारी जवान नस्ल की बात हम करें, जो टीन एजर्स की बात हम करें, चाहे उसके अंदर हमारे भाई हो, हमारी बहनें हों, आजकल माहौल ऐसा है कि दीन का जो तसव्वुर था वो हमारे जहनों से निकलता जा रहा है। उसकी वजह ये भी बन रही है, और उसका एक सबब ये भी बन रहा है कि हमने जो है अल्लाह को छोड़ा है, अल्लाह के रसूल को छोड़ा है, अल्लाह के कलाम को छोड़ा है, जो हमारे लिए एक निहायत ज़रूरी था। आप यूँ समझ ले, जैसे हम ज़िंदा रहने के लिए समझते हैं कि हमारा सांस लेना जो है ज़रूरी है, जो सांस लेने के बगैर शायद हम जिंदा न रह पाएँ, इसी तरह अल्लाह का दीन, अल्लाह का एहसान, अल्लाह के जो है इनामात और अल्लाह का कलाम जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक तरीके हैं, ये आप ऐसा ही समझ ले, अगर ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ना हो, शायद हमारी ज़िंदगी न बच पाए। बज़ाहिर तो लगेगा हमें कि हम जिंदा है, लेकिन अंदर से हम खोखले हो जाएंगे, हमारी दुनिया जो है बर्बाद हो जाएगी, हमारा आखिरत भी बर्बाद हो जाएगा। तो आजकल के जवान जो टीनेजर्स है, बस उन्हीं को नहीं, जो भी इंसान इस वक्त जो है दीन से दूर भागता जा रहा है, अल्लाह से दूर जा रहा है, अल्लाह के रसूल से दूर जा रहा है, कुरान को छोड़ रहा है, उन्हें चाहे कि अल्लाह की तरफ वापस रुख करे, अल्लाह के नबी की तरफ वापस रुख करे, इस कुरान को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करे। क्योंकि कुरान ने खुद कहा है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये तो हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। और ऐसी किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, ये पाक किताब है। क्योंकि बिलाल साहब, मैं आपको बताता चलूँ, इंसान दुनिया के अंदर कोई भी किताब पढ़ता जा रहा है, कोई किताब ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर, आपने खुद जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह
बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, अल्लाह ने आपको बड़ी नियामतों से नवाजा है। आपने खुद देखा होगा कि दुनिया के अंदर कुरान पाक के अलावा कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके शुरू में या आखिर में या बीच में किसी भी सफ़े पे लिखा हो कि ये किताब जो है शक के बगैर है, ये किताब जो है ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ऐसी कोई किताब नहीं है। कुरान वाहिद अल्लाह की ऐसी किताब है, अल्लाह शुरू में इसका तारुफ कराते हैं कि ये ऐसी किताब है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसके अंदर कोई भी शक व शिकवा ना हो। अल्लाह ने यूं ऐसा फरमाया यहाँ पे कि आगे जो आप पढ़ रहे हैं पूरी किताब आपको पढ़नी है और ये ज़िंदगी के अंदर आपको लानी है। कहीं आपको यूं जहन में ना आए कि शायद इसमें नौज़बिल्लाह कोई बात गलत लिखी हो, किसी बात पे आपको शक हो जाए, इसलिए अल्लाह ने ऐसा शुरू में कह दिया कि ऐसी किताब है जिसके अंदर शक नहीं है। अब इस किताब को हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना है, बस हमारी ज़िंदगी के लिए जो है नजात का ज़रिया है ये किताब है। नाज़रीन मोहतरम, ये थे हाफिज़ इनायत साहब जो हाफिज़ कुरान बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जहन में और एक बात आई, हाल ही में एक शायद स्वीडन में एक वाक़या हुआ कुरान पाक की बेहरमती को लेकर। यहाँ से हम बताना चाहेंगे कि किसी भी सूरत हम इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाली कौम नहीं है। दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं जहाँ पर भी है, हर एक की एक ही आवाज़ है कि हम इस चीज़ को कंडम, शदीद अल्फाज में इसको कंडम करते हैं और किसी भी सूरत में हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल हमने हाफिज़ साहब की हौसला अफजाई के लिए इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया है मुबारकबादी के तौर पर मेरी तरफ से, और हमारे जो प्रेसिडेंट है मीडिया एसोसिएशन पट्टन के राही निसार साहब, उनकी तरफ से मैं इनको ये इनाम देना चाहूँगा। शुक्रिया हाफिज़ साहब।